सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। With heartfelt gratitude towards Almighty, we can start the practice. Holistic science of yoga has not only helped adults but also age group from 10 to circumpassing everyone, right? So योग की यह विधा केवल किसी जेंडर, क्रीड, कास्ट, एज ग्रुप में सीमित न रहते हुए ये सबके लिए है. So this holistic science is for all age group, for everyone. Now the intensity depends. पर हमारे योगा प्रोटोकॉल में there are certain specific yogic practices which have been designed, which are thereby helpful for everyone, है ना? So excepting in case of any specific ailments attaining to any injury, तो आप avoid कर सकते हैं. Otherwise, every practice which is going to be done now, please follow this meticulously so that we can complete the session with a very blissful smile at the end. है ना? So let's start by first aligning ourselves for the prarthana mantra. Everyone sit in the normal Sukhasana, wherein you keep your both the foot on the floor. Let me start. सभी कमर गर्दन सीधी. Keep your spine erect. Make it a point that you keep the spine alert, stable. हमारे हाथों की मुद्रा ध्यान अवस्था में. Let the index finger be pressed thoroughly by the thumb. जब हम ध्यान अवस्था में रहते हैं, अपने आप को शांत स्थिर रखते हैं, तब सही मायने में योग की शुरुआत कर पाते हैं. अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानि. So let us now finally allow ourselves to take it 3 times deep long breath in, followed by 3 times Om and the morning prayer of the yoga protocol. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सभी अपने हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आए. इस भावना के साथ कि सभी साथ साथ बढ़े, आगे बढ़े, अपने आप को अपितु अपने समाज के सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर आगे स्वस्थ समाज की ओर अग्रसर है. संरक्षत्वं संवदत्वं सम्मो मनांसि जानता देवाभारं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते. अपने दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें. Let us rub our both palms together, generating the heat within. Let's place them over the eyes और शुरू करते हैं. ठीक है. So सभी अपने
मैट पे आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द सेशन। Still, I need to be more discreet. Yes. So, सबसे पहला है ताड़ासन. For that, I would request each one to attain the posture of ताड़. सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का फासला है. We keep some distance between your both feet so that you're comfortable, right? अब अपनी दोनों हथेलियां शोल्डर लेवल पे, अंगुलियों को आपस में आप पकड़े, इंटरलॉक देम एंड कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़े. Allow your elbows to move behind, move outwards. धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए get your first hands on the hip. Take a deep long breath in and we'll raise the arms above. And as we raise, let us try to feel and stretch the heels upward. इस अवस्था में अपने शरीर को पूर्णतया स्थिर करने के बाद try checking your own posture. Make sure that our arms are touching the ears. हमारे बाजू में अपने कानों को सटा के रखना है. पंजों के बल खड़े रहना है. बिना संतुलन खोए सामान्य रूप से सांस ले, कुछ देर सांस छोड़े. आरामदायक स्थिति में अपने आप को स्थिर करें. शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए आप अपने आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर फोकस करें. Release slowly, allowing both the hands to now come to the normal state. यह आसन हमारी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा है. जांग घुटने मजबूत बनते हैं. तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सुंदर है यह अभ्यास. It helps to wake up each and every cells also. With this practice, it is known to be helping us to attain a focused, concentrated state. ठीक है? 10 से 15 सेकेंड तक रखने के बाद फिर हमें छोड़ना होता है. श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना होता है ना. फिर से एक बार करेंगे. लंबा गहरा श्वास करें. Allow your both the arms to be bringing them together, interlock and get them upwards. Take a deep breath in and stretch. Okay, stretch. In this practice, we are also stretching the arms. We are also stretching the lower legs thereby. Right? Exhale, release. Nice. Let us now go for the next practice. Vrikshasana. करेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास. So for that, वृक्ष का सबसे पहला अर्थ है पेड़. तो इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पेड़ के समान, वृक्ष के समान तनी और मजबूत हो जाती है. सबसे पहले अपने पैरों को फर्श पर 2 इंच की दूरी में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं. अपनी आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर फोकस करें. गहरी लंबी सांस लेंगे. गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को जंघा के बीच में. Like you have to bring them at the root center of the perineum. Get your right. अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखना है.
Make sure the gastrocnemius muscles are touching the shin bones. Sorry, the hamstrings are touching the shin bones. आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई होनी चाहिए. Your heel should be touching the perineum or the मूलाधार center. अगर नहीं है थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हुए स्थिर करें. जी. एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और आहिस्ता से उनको सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में स्थित हो. आहिस्ता से सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में स्थित हो. स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें. 10 से 30 सेकंड तक हम इस स्थिति में रह के स्थितबद्ध रह सकते. Please stay aligned. मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाने वाला अभ्यास. वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को बेहतर बनाता है. गठिया, चक्कर या फिर मोटापा है तो ये अभ्यास आप अवॉइड करें. 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए अपने धीरे से हथेलियों को नीचे ले आए. अब अपने दाहिने पैर को आहिस्ते से नीचे लाएं, सीधे खड़े हो. गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें. और अब पूरे क्रम को बाएं पैर से दोहराना है. इस सभी क्रम को जो भी हमने अभी किया दाहिने पैर से, इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से करना है. So let us allow the left foot to be brought near the perineum. Fix it nicely. Fix it. लंबा गहरा श्वास लेते हुए इस अभ्यास से मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने में कटिबद्ध हो जाते हैं. Please stay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Relax. Allow your foot to release. समझ कुछ देर इसी स्थिति में अपने पैरों में होने वाले संवेदनाओं को महसूस करेंगे. Let us try to feel the sensations of the nerves which were stretched, which were pressed. करेंगे. तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, जिसके लिए आपको अपने पहले समझना है. पाद का अर्थ है पैर, हस्त का अर्थ होता है हाथ. ओके, सो पाद हस्तासन में वह योगासन कहा जाता है जिसमें हम अपनी हथेलियों को पैरों के नजदीक ले जाते हैं. ओके, इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो. अब एक लंबा गहरा श्वास भरें. अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करें और अपने सर के ऊपर ले जाएं. अपने शरीर को जितना हो सके कमर से ऊपर की ओर खींचें. इस आसन में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए तब तक नीचे झुकाएं जब तक कि आप पूर्णतया हथेलियों को नीचे न करें. Allow yourself to completely surrender.
जितना हो सके अपने हथेलियों को नीचे की तरफ सरेंडर लेके ले जाए। आपकी भुजाएं और सर एक साथ नीचे झुके। ध्यान रखें कि अगर कमर में कोई अकड़न की समस्या है तो जितना उतना ही झुकाएं जितना कि आपके लिए संभव हो, बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुकाना है। अब स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लेते और छोड़ते हुए रहना है। पादहस्तासन से रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली होती है। यह आसन महिलाओं के मासिक समय में भी बहुत होने वाली जो तकलीफ होती है उनसे राहत दिलाता है। किंतु यदि आपको हृदय रोग, रीढ़ संबंधी समस्याएं हैं, चक्कर आना, पेट की सूजन वाली समस्याएं हैं तो यह आसन ना करें। हर्निया में भी इस आसन को अवॉइड करें। Avoid this asana except for the hernia issue. After 10 to 20 seconds, अब एक गहरी सांस भर लें और धीरे से ऊपर आए। सुनिश्चित करें कि जब आप ऊपर आते हैं तब भुजाएं और सर साथ में ही ऊपर आए, है ना? Allow your arms to come in line with the head. आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित करने से पाचन क्रिया में भी सुधार आता है। हस्तपादासन इज अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस। ओके, रिलीज। अब आपने अगर अच्छे से किया होगा तो पसीना आना अभी से स्टार्ट हुआ है ना? सो लाइक हाउ जब हम गरम शॉवर या फिर ल्यूकवार्म शॉवर लेते हैं तो यू फील नाइस, राइट? उसी प्रकार सुबह सुबह पसीने से नहाने का अपना एक अलग मजा होता है। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी इंटरनली। करेंगे दूसरा अभ्यास, अर्ध चक्रासन। आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र की तरह यानी पहिए के समान गोलाकार में आती है, राइट? सो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथों से आपकी कमर को सहारा दें। ओके, मेक श्योर आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हो। मेक श्योर ऑल योर फिंगर्स आर जॉइंट टुगेदर ताकि वो एक अच्छा सा सपोर्ट मिले कमर को, राइट? गहरी सांस लें, धीरे धीरे सर को पीछे की ओर झुकाएं। इतना पीछे झुकाएं कि आपको अपनी गर्दन की मांसपेशियों पर गहरा दबाव या फिर खिंचाव महसूस। सामान्य रूप से सांस लें और सांस छोड़ें। स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहना है। अर्ध चक्रासन हमारी रीढ़ को लचीला बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है, सांस लेने की क्षमता को अच्छा बनाता है। और स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को भी आराम देता है। Exhale, come back to the center. Please make sure जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उनको इस प्रक्रिया को करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है ना? Please take it a point that you do it with your focus and alertness. फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लें।
यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया इस आसन को ना करें। दस से 20 सेकंड लेने के बाद गहरी सांस भरते हुए वापस आए और कमर को सीधा करें। सिर को सामान्य स्थिति में वापस रखते हुए धीरे धीरे सांस लें। अपने दोनों हथेलियों को समस्थिति में रखें। इस अभ्यास से पीठ और गर्दन की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, नाइस। लेट अस नाउ गो फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, त्रिकोणासन। इस आसन का नाम त्रिकोणासन इसलिए दिया गया है कि इसमें हम करते समय हमारा शरीर, हमारे यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेती है। तो इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाए। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो अपने दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि दोनों हाथ एक सीध में हो, आगे पीछे ना हो। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाहिनी ओर, कमर को दाहिनी ओर धीरे धीरे झुकाएं। दाहिने हाथ से अपने दाहिने एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर रखें। ओके, एक्सहेल। हो सकता है कि अगर कोई अपने हाथ को एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जितनी क्षमता है अपने हाथ को वहीं पर ले जाए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव से पहुंच पाए। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। अपनी नजर ऑपोजिट हैंड के ऊपर। So let your eyes be focusing on the middle finger of the left hand. सामान्य रूप से सांस लें, सामान्य रूप से सांस छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। आसनों का नाम ही है स्थिरम सुखम आसनम। तो स्थिरता और आरामदायक स्थिति में स्थिर रहें। वापस ऊपर की ओर आएंगे सांस लेते हुए और अपने दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन बाएं पैर की तरफ घुमाएं। ओके, यह आसन जितना सरल है उतना उपयोगी भी है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, अतिरिक्त स्टिफनेस को भी कम करता है। And we have to try gazing at the middle finger. Stay there. जिनको फ्लैट फुट की समस्या है वो भी इस प्रैक्टिस से हेल्प पा सकते हैं and thereby helping not to happen anytime later. अगर आपको स्लिप डिस्क, शाटिका जैसी प्रॉब्लम हो, गर्दन में कोई चोट लगी हो तो इस अभ्यास को ना करें। Others can do it very well. Stay there. Make sure the knees are straight. श्वास भरते हुए release. Allow yourself to come to the samasthiti. जब हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, मानसिक तनाव को भी निजात पाते हैं। We thereby help to release the mental knots which hold us tight. ना? So सामान्य रूप से सांस भरना छोड़ना प्रक्रिया में रहना चाहिए किसी भी
लंबा गहरा श्वास भरें and allow yourself to first visualize if there is any stiffness, settle it down. Allow that pain to release itself, release by itself. लंबा गहरा श्वास भरें, शिथिल ताड़ासन में कुछ देर लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। Keep breathing. लंबा गहरा श्वास, रिलीज। करेंगे बैठने वाले अभ्यास। For that, I would request each one कि आप पैरों को सामने खड़ा करके बैठ जाएं. Allow yourself to sit. We'll start with the sitting postures. Yes. सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सामने खड़ा करते हुए बैठ जाएं. Allow yourself to stay aligned. We will now practice भद्रासन, जिसके लिए आपको यह मूल रूप से ध्यान रखना है कि भद्रासन में हम अपनी मानसिक कोई भी उफान है उनको संतुलित या फिर शांत करने के लिए स्थिर रहते हैं। इस आसन को ऑस्पिशियस पोज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक, let's take a deep breath in. Yes, अपने दोनों हाथ भुजों के समान रखें। इस आसन को पहले तो दंडासन कहा जाता है, जो कि मूल रूप से सिटिंग पोस्चर्स में एक प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस है। कुछ देर इसमें अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने अंगूठों पर कसें, पैरों के अंगूठों पर कसें। और जितना संभव हो पैरों की एड़ियों को नजदीक लाने का प्रयास करें। पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो नजदीक लाने का प्रयास करिए। भद्रासन एक विराम आसन है, यानी लंबे समय तक बैठने की प्रक्रिया है। इसलिए आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। This is one of the relaxing posture, keeping the mind calm, cool. भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। घुटने के दर्द को भी कम करने में सहायक है यह आसन। पेट में किसी भी प्रकार के तनाव या फिर मासिक प्रैक्टिस के दौरान होने वाले दर्द, मंथली साइकिल के दौरान होने वाले दर्द से भी निवारण लेने में सहायक है। यह आसन गर्भवती महिलाओं में भी लाभदायक है।
एक्यूट आर्थराइटिस और साइटिका के रोगी इस आसन को ना करें। कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद अब अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की ओर लेते हुए दंडासन में कुछ क्षणों तक आराम करें। दंडासन में कुछ क्षणों तक आराम लें। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लें। जी, नेक्स्ट प्रैक्टिस वज्रासन। वज्रासन में हम अपने ध्यान मुद्रा में किया जाता है। So allow yourself to attain this practice of Vajrasan, allowing both the heels to be upwards. Sit aligned. लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर और आरामदायक रखें। वज्रासन से आप अपनी जांघों और पिंडलियों को मजबूत बनाते हैं। जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। इसी स्थिति में कुछ देर आरामदायक लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। Take a deep long breath in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। यह आसन पाचन क्रिया में बहुत सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द या फिर शाक्तिका में भी आराम देता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान करते हुए मजबूत रखता है। यदि घुटनों में दर्द है या फिर टखनों में दर्द है तो आप इस प्रैक्टिस को ना करें। बवासीर के रोगियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। कुछ आसन में वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को अब इस आसन में रहने के बाद दोनों पैरों को शिथिल करने के लिए पहले तो राइट लेग एंड देन फिर लेफ्ट लेग, दोनों पैरों को सीधा करें। रिलीज, रिलैक्स। दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके पैरों में मजबूती आती है और साथ ही साथ पाचन क्रिया भी सुधर जाती है और एकाग्रता भी बढ़ती है क्योंकि हमारा मेरुदंड सीधा रहता है। चिंता, तनाव से भी निवारण मिलता है। अब करेंगे दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास। ओके, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का मतलब है उष्ट्र। उष्ट्र माने ऊंट। तो इस आसन में हम ऊंट की भांति अपने पीठ जिस प्रकार से ऊंट का होता है उस आसन में रहते हैं। इस आसन में रहने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाइए। हम इन दी वज्रासन और अपने शरीर को सिर से अपने शरीर को पूर्णतः स्तब्ध रखते हुए धीरे धीरे
हम ऊपर उठेंगे। लेट अस लिफ्ट द पेल्विस एंड स्टैंड ऑन द नीज। घुटनों के बल सभी खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों थंब पीछे प्रेस करें, राइट, वेस्ट पर प्रेस करना चाहिए। कोहनी कंधे समानांतर हो। आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री की कोणांश में रखनी चाहिए। लेट योर thighs be perpendicular to the ground. सांस अंदर भरें और अपने रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। रीढ़ के नीचे कॉक्सिक्स की ओर से पीछे झुकने का प्रयास। इतना पीछे झुकाएं कि आपको गर्दन की नस नाड़ियों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो। यह हो जाएगा अर्ध उष्ट्रासन। लंबा गहरा श्वास भरें और पीछे झुकने का प्रयास। अब हम मुड़ेंगे उष्ट्रासन की ओर। फॉर दैट लेट योर राइट हैंड बी टचिंग द राइट हील। अपने दाहिने हथेली को दाहिने हील पे टखने पर लगाएं और बाएं हाथ को बाएं टखने पर लगाएं। ओके, श्वास पूर्णतया लेते हुए ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना दे। आराम से आप पीछे जाएं, राइट। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड्स तक रुकना है। ओके, 10 से 30 सेकंड्स तक कुछ देर रुकेंगे हम। Release. Release. Stand on your knees and let's listen to the benefits. यह आसन हमारे रक्त संचरण को बेहतर बनाता है, वक्षस्थल को मजबूत करता है, chest muscles को expand करता है. It helps to thereby stimulate the latissimus dorsi, which are also known as swimmer's muscle. तो स्विमिंग के दौरान जो हम सक्रियता देते हैं अपनी छाती को, उसी प्रकार इस प्रैक्टिस में अपनी छाती को भी तानना है. Allow yourself to stretch, allowing the chest muscles to expand in their maximum state. Great. यह हमारी पेट, यह प्रैक्टिस हमारे पेट और फूलों की चर्बी को भी घटाने में मदद करता है. यदि हर्निया इशू है तो इस, या फिर गठिया भी इशू है तो इस आसन को ना करें. हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगियों को भी इस आसन मना है. यह आसन मना है. पेट में चोट है या फिर गर्भवती है तो भी इस प्रैक्टिस को ना करें, है ना. फिर आफ्टर हैविंग अटेन्ड फॉर द 10 सेकंड्स 10 to 20 सेकंड्स हमें श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में ऊपर आने के रहना है. लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें, जस्ट अ मिनट. किसी को ज्वाइन होने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? जस्ट
लंबा गहरा श्वास लें और फिर से इसी प्रक्रिया को करें। जी, लंबा गहरा श्वास भरें और फिर से अपने आप को वज्रासन में बैठ कर स्थित करें। Let us take a deep long breath in, balancing the breath in the inner system. Take a deep long breath in, सामान्य श्वास लें और छोड़ें। उष्ट्रासन के नियमित अभ्यास से हम कब्ज, जो कि बहुत बार बाकी बीमारियों का आवाहन देता है, उस उष्ट्रासन की मदद से हम कब्ज को भी दूर कर सकते हैं। राइट, एसिडिटी इशू, कब्ज इशू, एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं उष्ट्रासन के माध्यम से। नेक्स्ट, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस, शशांक आसन। शशांक का मतलब है खरगोश। खरगोश जिस प्रकार से अपने आप को स्थितबद्ध रखता है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की आकृति करनी है। ठीक है, so let us align ourselves to get aligned like a rabbit. So let us exhale and progress down. Let your hands be completely forward. Let the hands be completely forward. Let the hands be completely forward. हथेलियां सामने की तरफ झुकाते हुए कुछ देर इसी स्थिति में रहें। Complete surrender. यह प्रैक्टिस हमें शांत मन स्थिर करने में बहुत लाभ देती है। सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगूठे परस्पर छू रहे हो। Let the big toes of both the feet be touching each other. सुनिश्चित करें कि आपकी ठुड्डी जमीन पर हो और कोहनियां समान हो। अपनी दृष्टि सामने की ओर रखते हुए कुछ देर इस स्थिति में शांत और स्थिर करके रखें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। शशांक आसन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया को भी सुधारता है। यह आसन पीठ दर्द में भी लाभ देता है। हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गठिया के पेशेंट्स को भी इस आसन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वरना यह ना करें। कुछ समय तक शशांक आसन में रहने के बाद सांस भरें और ऊपर आए। Allow your hands to come up and relax in the Vajrasana. अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाएं। सामने की तरफ अपनी दोनों हथेलियों को एक तरफ ले जाते हुए let your both the hands be straight and aligned. इस स्थिति में विश्राम करें।
नियमित रूप से जो शशांकासन है, ये हमारे अंदर का क्रोध, जो भी ग्लानि है, उसको कम करने में मदद करता है. It helps to be attaining a nice, calm, cool, tranquil state from this very angry mood, right? लंबा गहरा श्वास करें. Take a deep, long breath in और इसी स्थिति में कुछ देर लंबा गहरा श्वास करें. योग जीवन जीने की कला है. हम हर प्रक्रिया को स्थिरम सुखम मोड में करते हुए सावधानी पूर्वक करें तो उसका लाभ बहुत हद तक हमें मिलने लगता है. Right? So keep doing it with the full thought and awareness of comfort. Great. अब करेंगे नेक्स्ट अभ्यास. उत्तान मंडूकासन. जिस प्रकार से मंडूक रहता है उसी प्रकार से हमें क्रिया करनी है. So for that, in the Vajrasan, allow yourself to expand this Vajrasan. Let me come closer ताकि आपको posture अच्छे से दिखे, है ना. तो अपने दोनों पैरों को साइडवेज रखते हुए let us sit in the practice. अपने कूल्हे जमीन पर रहें. Let your buttocks be touching the floor. अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं. Get your both the hands above. Let's take a deep, long breath in. कोहनियों से मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को बाएं और बाएं हथेली को दाहिने कंधे पर रखें. इस स्थिति में 3 से 10 श्वास भरें. इस स्थिति में 3 से 10 श्वास भरें. Allow yourself to be comfortably aligned in this position. लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास. श्वास लें, हाथों को ऊपर उठाएं. श्वास छोड़े, हाथों को नीचे लाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आए. दोनों पैर सामने, दोनों पैर सामने. उत्तान मंडूकासन के अपने लाभ हैं. श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य करना है. जी, अब करेंगे वक्रासन. वक्रासन में आप जिस स्थिति में हो, attain that position of दंडासन. ठीक है, तो हमें वक्र की भांति posture को धारण करना है. So for that, I would request each one to be aligned first in the Dandasana. अपने हाथों को कूल्हों के पास रखना है. ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना आए. स्थिति में दंडासन में रहने के बाद दाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के घुटने के साथ में रखें. ओके, और अपने अब बाएं हाथ को दाएं पैर के पार ले जाते हुए हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ पीछे ले जाते हुए हमारी नजर भी पीछे रहे. ओके, so let your eyes be also looking behind. शरीर और गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़ना है. ओके, look behind. इस स्थिति में सामान्य रूप से श्वास लेना है और छोड़ना है.
वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत एवं लचीला भी बनाता है। यह आसन अग्नाशय मतलब पैंक्रियास को उत्तेजित करते हुए प्रॉपर सिक्रीशंस करता है और नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लीवर के लिए भी लाभदायक है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया को भी सुधारता है। अगर आपको रीढ़ की समस्या है, शाटिका नहीं बट स्लिप डिस्क का इश्यू है, तो आप इस प्रक्रिया को ना करें। अगर पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी इस आसन को अवॉइड करें। Take a deep long breath in, raise the arms above and finally come to the samasthiti. अब इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में करेंगे, ऑपोजिट। इसी आसन को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिनी हथेली ऑपोजिट। Allow the right hand to touch and cross over, and let the other hand, let your left hand be looking behind. नजर पीछे। यह आसन मासिक दर्द में भी आराम देता है। नियमित रूप से वक्रासन करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है और पेट में अतिरिक्त सहायक सिक्रीशंस भी प्रॉपर होने में हेल्प होती है। कब्ज मुक्त जीवन व्यतीत करने में भी हेल्प मिलती है। ग्रेट। इनहेल एंड रिलीज। अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स। Allow yourself to relax. अब करेंगे सुपाइन पोज। अब करेंगे पेट के बल वाले आसन, प्रोन पोजिशन। ठीक है, प्रोन आसन। ठीक है, so let us align ourselves in the position such that we are attaining prone position. अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रखेंगे और सिर हथेलियों पर। Let the palm face down. दोनों पैर आपके जमीन पर आरामदायक स्थिति में रखें। इस स्थिति में अपने आप को शांत स्वरूप में स्थित करते हुए let's take a deep long breath in and breathe out. मकर आसन के अभ्यास के दौरान शरीर का पूर्ण भाग सीधा रहना चाहिए। यह आसन सभी अधोमुखी क्रियाओं में रिलैक्सेशन के तौर पे किया जाता है। यह पेट के निचले हिस्से को आराम देता है। ठीक है, आफ्टर हैविंग अटेन्ड इट करेंगे नेक्स्ट अभ्यास भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है सर्प या फिर सांप, है ना, या फिर कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी भाग जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे कोबरा अपने फन को ऊपर उठाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मकर आसन में आना है, जिसमें आप अपने पैरों को 1 फीट दूर रखें, माथे को हथेली पर रखें, माथे को हथेली पर रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। Let your both legs touch each other.
माथे को जमीन पर रखें और अपनी हथेलियों को शोल्डर लेवल पे ले जाएं। हथेलियों को छाती के समीप रखें और कोहनियों को उठाएं। गहरी सांस लेते हुए और ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाना है। अपने शरीर को नाभि से ऊपर उठाना है। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां शरीर के बगल में हो। Right? So let's take a deep breath in. आपके कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो, सामान्य रूप से सांस ले और छोड़े। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में भी आराम मिलता है। लंबा गहरा श्वास ले और लंबा गहरा श्वास छोड़े। लंबा गहरा श्वास भरे और लंबा गहरा श्वास छोड़े। आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज संबंधी समस्याओं में भी निजात देता है। Now, if you are comfortable, raise your arms or raise and straighten the elbows. Let's look forward. यदि आपने ऑपरेशन किया है या फिर गर्भवती हो तो इस आसन को ना करें। 6 महीने तक इस आसन को अवॉइड करना चाहिए अगर आपने ऑपरेशन किया है कोई भी पेट से संबंधित। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को नीचे लाएं और हाथों को सामने की ओर खींचें। अपनी हथेलियों को सामने की ओर खींचें। Let your arms be stretching outwards and the palms be stretching. जैसे रबर बैंड को हम खींचते हैं उसी प्रकार अपने शरीर को तानना है। आरामदायक सांस लें। इस आसन को नियमित रूप से सही मायने में करने से तन मन स्वस्थ रहता है। Release, relax. Let us now get ourselves aligned to do the next practice. करेंगे शलभासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को नीचे लाना। शलभ का अर्थ है टिड्डा, है ना? तो टिड्डे की भांति अपने पोजीशन रखनी है like a locust pose. Get your both the hands under the thigh such that you try and attain the position of comfortable lying down. Let's take a deep breath in and we'll raise the right foot above, then left foot. Alternatively, you may also release your hands and try and make your both the legs to go up to 30 degrees only. Stretch the arms above. Stretch up. Release, relax. Okay, great. Let us now turn towards the left side and attain the supine position. Let us attain the supine position. लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें और अपने शरीर की आकृति नौका के समान ऊपर उठाएं।
So let your both the legs and the chest lift up like a board portion. Okay? Take a deep breath in and we raise the legs and the chest above. Let us try to balance the position. पेट पर अतिरिक्त दबाव आना चाहिए यहाँ पे। इस प्रक्रिया को आप आराम से इस आसन को करते समय का ध्यान दें, मासिक के दौरान नहीं करना चाहिए। इस प्रैक्टिस को पीरियड्स के दौरान अवॉइड करें। इवन गर्भवती महिलाएं या फिर जिनको हर्निया है, इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। Let us do this one more time. Let us take a deep, long breath in and lift up. Release and release. Okay, great. लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। शरीर की स्थिति सामान्य शव की भांति रखें। Let your body be completely still and relaxed. Let the body be completely still and relaxed. No voice being disturbing you. शरीर का पूर्ण ध्यान हमारे भ्रूमध्य पे रहे। Let the full focus be now at the eyebrow center. Let the full focus be now at the eyebrow center. Let's take a deep, long breath in and let the full focus be at the eyebrow center. लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा प्रश्वास। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। एक समर्पण के भांति अपने शरीर को आपने मां प्रकृति के सामने समर्पित कर दिया है। इस भावना के साथ लेट अस मेंटली chant 3 times Om. Okay, so finally, let us turn towards the left side and we'll sit to do the concluding part. So we are now turning towards the next part of this session, which would be taken by Sir Pintu Mehto. Okay. Thank you so much. Yes. Sir, unmute yourself. Okay. Thank you so much for listening and practicing throughout. Abhi next very interesting class Sir के द्वारा होगी. So Sir, you may take the lead.
सर और मैम, आपको इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। पर मुझे लीव करना होगा, मुझे संस्था के कार्यक्रम में भी क्षमा करें। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, जिसमें हम सभी जानेंगे कि योग केवल आसनों का